Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I will teach you chapter 2 of snapshot, which is the address. Alright, it is written by Margaminko. Fine. Though I taught you some of the chapter in my previous video, but because of some sound problem I am shooting the video again from starting only. Fine. It will be better for you people, क्योंकि आप में से किसी की डिमांड आई थी कि सर साउंड क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं जो स्टार्टिंग से बना रहा हूँ. फाइन. नाउ सी द कैरेक्टर. मार्गामिनको नरेटर है एंड ऑथर भी है. Message as narrator's mother. Fine. Message darling, message as friend. ठीक है, acquaintance है. Now open your book and see in the chapter. Do you still know me? I asked. The narrator asked Mrs. Darling whether she still know her. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. The woman, means Mrs. Darling, came closer to the narrator and she looked at her searchingly. She opened the door a chink only. Chink means a bit only. I came closer and stood on the step. The narrator came closer and she stood on the steps of the house. Fine. And then she said, "No, I don't know you." Mrs. Darling said to narrator Margaminko, okay, that she did not know her. "I am Mrs. S. daughter." "I am Mrs. S. daughter." She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. Means Mrs. Darling kept her hand on the door and she did not want to open it any further. Alright. And moreover, she did not give any sign of recognition to the narrator. यानी स्ट्रेट फॉरवर्डली उसने मना कर दिया कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती है. फाइन. Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it isn't her. When the lady did not recognize the narrator thought that perhaps I had mistaken. ठीक है. And most probably मैंने क्या कर दिया है, गलत बैल को बजा दिया है. ठीक है. I had seen her only once. The narrator Margaminko had seen Mrs. Darling only once. Fleetingly, and that was years ago. Casually she saw her. ठीक है, बहुत साल पहले. ठीक है, और वो भी कब? Years ago. It was most probable that I had rung the wrong bell. And then she thought that most probably I had rung the wrong bell. ठीक है. The woman let go of the door and stepped to the side. यानी महिला ने क्या कर दिया, दरवाजे को बंद कर दिया. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that I was right. यानी as the narrator was looking keenly towards the woman hid herself behind the door. ठीक है. नरेटर ने पहचान लिया that she was wearing her mother's green knitted cardigan. ठीक है, उसकी माँ के ग्रीन कलर के knitted cardigan को पहने हुए थी. she knitted, this one knitted. ठीक है. knitted मीन्स होता है wrapped, यानी बुना हुआ, ऊन से बुना हुआ. ठीक है. cardigan, do you understand cardigan? Cardigan is a woolen cloth worn by लेडीज. ठीक है. सर्दियों का विंटर क्लोथ है, महिलाओं के द्वारा पहना जाता है. तो उसके जो बटन थे ना, वो वॉश करने की वजह से कैसे हो गए थे, पेल हो गए थे, येलोइश हो गए थे. ठीक है. और जैसे उसे ये पता चला था कि मैं कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ, तो महिला ने क्या कर लिया, अपने आप को गेट के पीछे छिपा लिया. ठीक है. बट आई न्यू नाउ दैट आई वाज राइट. लेकिन अब तो नरेटर को कंफर्म हो गया था कि मैं सही थी, मैं गलत जगह पे नहीं थी, मैं सही एड्रेस पर थी एकदम. वेल, You knew my mother? I asked. नरेटर ने पूछा कि क्या आप मेरी माँ को जानती थी. Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back, only me. Mrs. Darling thought that each and every Jew had been killed in the war. Nobody has left. ठीक है. तो
With a surprising nature, she was asking, "Have you come back?" Underline this sentence. ठीक है, सेंटेंस को अंडरलाइन करना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस एंड क्वेश्चन में आस्क फ्रॉम दिस सेंटेंस, हैव यू कम बैक. व्हाई डिड शी आस्क? क्यों पूछ रही थी? बिकॉज शी थॉट दैट नाउ नोबडी वुड कम बैक एंड आई वुड नॉट बी एबल टू, यानी आई वुड नॉट नीड टू गिव द लगेज एंड गुड्स बैक टू देम. उसकी तो नीयत स्टार्टिंग से ही खराब थी. वो तो उनके सामान को, उनकी बिलोंगिंग्स को देना ही नहीं चाहती थी. ठीक है, इसीलिए वो उसे बिल्कुल भी पहचानने से इनकार कर रही थी, बिल्कुल पहचान ही नहीं रही थी. ठीक है, तो उसकी तो इंटेंशन यही था कि सारे के सारे जीव क्या हो गए, मारे गए हैं. ओनली मी, नरेटर ने कहा, हाँ केवल मैं. अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर. अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, यानी उस महिला के पीछे as the door opened behind her, a musty smell emerged. Musty means damp. What is the meaning of musty? Damp. In Hindi we call it सीलन भरी बदबू. ठीक है. I regret I cannot do anything for you. Mrs. Dorling said to the narrator that she could not do anything else for her. ठीक है. I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. यानी narrator ने रिक्वेस्ट की, मैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए ट्रेन में आई हूँ, मुझे एक मिनट आपसे बात करनी है. Then Mrs. Dorling replied, "It's not convenient for me now," said the woman. "I can't see you another time." यानी ये मेरे लिए कन्वीनियंट टाइम नहीं है, आप फिर कभी आना, तब आपसे मैं बात कर लूंगी. फाइन. She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. She nodded यानी उसने अपनी गर्दन हिलाई and cautiously she closed the door. इतनी सावधानी पूर्वक उसने दरवाजे को बंद कर दिया मानो कि nobody inside the house wanted to be disturbed, यानी घर के अंदर कोई डिस्टर्ब ना हो जाए. ठीक है. I stood where I was on the step. I stood where I was on the step. The curtain in front of bay window moved. यानी वो जहां पर खड़ी हुई थी वहीं पर खड़ी रह गई और बे विंडो का कर्टेन जो उठा, और जैसे बे विंडो का कर्टेन थोड़ा सा उठा तो उससे पता चला कि अंदर घर के कोई व्यक्ति ने पूछा कि कौन है, क्या चाहती है. तो मोस्ट प्रोबेबली उस लेडी ने ये कहा होगा, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं है, नथिंग. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. कुछ नहीं था, ऐसे ही था. I looked at the nameplate again. Dorling it said in black letters on white enamel. यानी जो enamel होता है, यानी enamel का मतलब है पेंट. यहाँ पर क्या मतलब है? पेंट. ठीक है. और क्या नाम है, जो जैम है ना, जैम ये उस पिलर के लिए यूज हुआ है जो गेट के पास लगा हुआ होता है. ठीक है. और जहां पर क्या लगा हुआ था, नेम प्लेट लगी हुई होती है. तो नेम प्लेट पर क्या लिखा हुआ था, डोरलिंग. क्या लिखा हुआ था, डोरलिंग. ठीक है. It said in black letters on white enamel and on the jam a bit higher the number 46. यानी जैम के ऊपर थोड़ा सा उससे ऊपर जैम के पास क्या लिखा हुआ था, नंबर 46. ये क्या है, ये हाउस नंबर है. ठीक है. ये भी लिखा हुआ था, इसका मतलब एड्रेस सही था. बिकॉज हर मदर गेव हर एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट 46. क्या एड्रेस दिया था, मार्कोनी स्ट्रीट 46. ठीक है. दिस वाज द एड्रेस गिवन बाय हर मदर. तो उसे लगा कि मैं सही जगह पर थी. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother. यानी जैसे वापस जाने लगी तो ट्रेन में अपनी माँ के बारे में सोचने लगी. Who had given me the address years ago? जिन्होंने मुझे ये एड्रेस दिया था years ago. It had been in the first half of the war. Means the incident of giving the goods and belongings happened at the first half of the war. यानी जब सामान दिया था, ये बात है फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर की. ठीक है. जब मिसेज एस भी क्या थी, जीवित थी. अब मिसेज एस इज नो मोर इन द वर्ल्ड, यानी मिसेज एस दुनिया में नहीं है, अब अकेली उसकी डॉटर है. आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड.
यानी आपको पता है कि ये कह रही नैरेटर का आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, तो इसका मतलब वो कहाँ रहती थी। इसके दो ही रीजन लगाए जा सकते हैं। द मोस्ट प्रोबेबल रीजन इज दैट सी मस्ट बी इन अ हॉस्टल, सी मस्ट बी स्टडीइंग, ठीक है, वो या तो हॉस्टल में होगी, कहीं पढ़ रही होगी, स्कूल में, ठीक है, स्टडी कर रही होगी बाहर घर से। एंड मोस्ट प्रोबेबली वन मोर आइडिया वी कैन गेट दैट शी माइट बी एट सम सेफर प्लेस। उसकी माँ ने ये सोचा होगा कि कहीं कोई घटना नहीं घट जाए, तो उसने उसे अपने हिसाब से किसी सेफ प्लेस पर पहुंचा दिया गया होगा, ठीक है। तो जैसे ही वो कुछ दिनों के लिए घर पे आई थी, शी फाउंड दैट समथिंग हैड बीन चेंज्ड अबाउट द रूम। उसे लग रहा था कि रूम कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। मीन्स शी वाज मिसिंग वेरियस थिंग्स इन द रूम्स, यानी अपने घर के कमरों में वो जो वेरियस थिंग्स को क्या कर रही थी, मिस कर रही थी। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, और मेरी माँ इस बात को देख करके सरप्राइज हो गई थी कि मैं देखो कितना जल्दी सी चीजों को नोटिस करने लग गई हूँ। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तब उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। क्या बताया मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, देखिए। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वाज एन ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, मैंने कभी भी उनके बारे में नहीं सुना था, बट क्लियरली शी वाज ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। यानी मिसेस डॉर्लिंग कौन थी, अक्वेंटेंस थी। किसकी अक्वेंटेंस थी, उसकी मदर की, ठीक है। अक्वेंटेंस का मतलब जानते हो, देखिए अक्वेंटेंस का मतलब होता है फैमिलियर, या फिर सिंपल कहेंगे तो नॉन, ठीक है, या फिर ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसका यही मीनिंग होता है, ठीक है। ये तो कभी कभी लगा लिया जाता है। नॉन होता है फैमिलियर, लिख देता हूँ, ठीक है। whom she hadn't seen for years, जिनको मेरी मदर ने वर्षों से नहीं देखा था। She had suddenly turned up and renewed their contact, since then she had come regularly, यानी मेरी मदर की और उनकी बहुत लंबे टाइम से मुलाकात नहीं हुई थी, वो अचानक से आज आई थी, और जब अचानक से आज आई थी तो क्या नाम है, अब उसके बाद से उसने अपने कॉन्टैक्ट मेरी माँ के साथ कैसे कर लिए, रिन्यू कर लिए थे। कैसे कर लिए, रिन्यू कर लिए थे, और तब से वो मेरे घर पर रेगुलरली आने लगी थी। मीन्स द स्टोरी नाउ इज गोइंग ऑन फ्लैशबैक। किसमें चल रही है, फ्लैशबैक में चल रही है। जैसे आपने देखा होगा मूवी में पिछली चीजों को दिखाते हैं, फ्लैशबैक करते हैं, ऐसे स्टोरी के अंदर ये चीजें फ्लैशबैक में चल रही है, ठीक है। यानी वो प्रीवियस बातें बता रही है, ठीक है। देखिए स्टोरी कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ठीक है, यानी बिफोर द वॉर और आफ्टर द वॉर, ठीक है। या ये कह सकते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर और लेटर एट द एंड ऑफ द वॉर, ठीक है। तो ये अभी फ्लैशबैक में चल रही है। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक समथिंग होम विद हर, जब भी वो यहाँ से जाती है ना तो अपने साथ में कुछ ना कुछ लेके जाती है। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा, यानी कन्वर्सेशन चल रहा है मदर का और डॉटर का। अब फिर से आ गई, ठीक है, नैरेटर जो है करंट में आ गई स्टोरी को लेकर। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, यानी मिसेस डॉर्लिंग जो है सारी की सारी टेबल पर रखी हुई चीजों को जो सिल्वर की हुआ करती थी एक ही बार में ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और फिर जो एंटीक, एंटीक का मतलब होता है एंशिएंट। क्या मतलब एंटीक का, एंशिएंट, ठीक है। एंटीक प्लेट को ले गई। दैट हंग देयर शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, यानी जब वो लार्ज वेसेस को लेकर के जा रही थी तो उनको ले जाने में उनको बहुत ज्यादा ट्रबल हो गई थी, परेशानी हुई थी। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रैक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, और मैं चिंतित थी कि कहीं क्रॉकरी की वजह से इनकी बैग में जर्किंग नहीं आ जाए, ठीक है, क्रैक नहीं आ जाए। माई मदर शुक हर हेड पिटीइंगली, और मेरी माँ ने भी ना जब इतना भारी भरकम सामान ले जा रही थी तो पिटीइंगली गुड बाय किया उनको, ठीक है, और अपना हाथ हिलाया। आई वुड नेवर हैड डेयर्ड आस्क हर, और मैंने फिर जो है कभी भी उनसे नहीं पूछा, हिम्मत ही नहीं हुई। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उन्होंने खुद सजेशन दिया था मेरे को। शी इवन इंसिस्टेड, और उन्होंने जोर दे करके कहा था, शी वांटेड टू सेव ऑल माय नाइस थिंग्स, कि बेटा मैं आपकी सारी की सारी अच्छी अच्छी चीजों क्या करना चाहती हूँ, सेव करना चाहती हूँ। इफ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज,
यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सक्यूज दिया था कि अगर हमको यहाँ से छोड़ना पड़ गया। आपको बताया मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पर बताया था कि जीव जो है सेफ नहीं थे हॉलैंड के अंदर, ठीक है। जब सेफ नहीं थे तो वो डरे हुए थे, और जब डरे हुए थे तो क्या नाम है, उसकी माँ नहीं चाहती थी कि अगर कोई दंगा हो जाए या अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारा सारा सामान, जितनी कॉस्टली चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है, यानी मिस हो जाएंगी। तो इसीलिए वो किसी भी तरीके से बाई हुक और क्रुक शी वांटेड टू सेव ऑल द नाइस थिंग्स, ठीक है, इसीलिए वो उनको दे रही थी। क्योंकि बताइए आपको ज्यूज को या तो कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जा रहा था या फिर डिपोर्ट कर देते थे या जगह को खाली करवा देते थे, एक पर्टिकुलर एरिया में बसाया जा रहा था। तो इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से ही मिसेस एस जो है अपनी सारी चीजों को देना चाहती थी। Have you agreed with her that she should keep everything I asked? नरेटर ने एक दिन पूछ लिया कि आप इस बात से सहमत हैं कि उनके यहाँ आपकी सारी चीजें सेफ हैं और वो आपकी चीजों को सेफली रख लेंगी। As if that is necessary, my mother cried. यानी जैसे ही नरेटर ने पूछा कि आपको लगता है कि मेरी चीजें सेफ है, तो नरेटर की मदर थोड़ी सी गुस्सा हो गई, क्योंकि आपने भी देखा जब फैमिली के मैटर में आप बोल जाते हैं, यानी कोई 14-15 साल का बच्चा बोल जाता है तो पेरेंट्स उसको चिल्ला के पढ़ते हैं, अच्छा ये जरूरी है क्या तुमको पूछना। तो ऐसे ही उसकी माँ जो उसके ऊपर चिल्ला पड़ी, ठीक है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, ये तो बेइज्जती है इस तरह से बातें करना। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, रिस्क के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा, जिस रिस्क को वो झेल रही है। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, जब भी वो हमारे घर से जाती है तो सूटकेस या बैग भर करके लेके जाती है। आपको अपने सामान की चिंता बड़ी पड़ी है, उसके रिस्क के बारे में नहीं सोचा। Said Mrs. S to her daughter. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. यानी मेरी माँ को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मुझे ना पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा था। She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. यानी उन्होंने मेरी तरफ देखा और उसके बाद में फिर जो है हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की, ठीक है। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. यानी अब वो कहाँ पर पहुंच गई है, स्टेशन पर पहुंच गई है। अब उसे वो सारी चीजें दिख रही हैं जो उसके लिए कैसी थी, फैमिलियर थी, जानी पहचानी थी, ठीक है। I was walking in familiar places again for the first time since the war. यानी वॉर एंड हो जाने के बाद में पहली बार नरेटर जो है फैमिलियर प्लेसेस पर घूम रही है, ठीक है। और प्लेसेस ना आपसे थोड़े थोड़े से क्या हो चुके हैं, वो बदले से लग रहे होंगे उसको। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन मैं नेसेसरी चीजों के अलावा और किसी चीज को भी देखना नहीं चाहती थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ द स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रेशियस टाइम। यानी मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी उन हाउसेस को देख करके, उन स्ट्रीट्स को देख करके जो मेरे लिए बहुत अच्छी रही थी, ठीक है, जो मेरी क्या थी, प्रेशियस मेमोरीज रही थी। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. यानी ट्रेन में एक बार फिर से मिसेस डॉर्लिंग को नरेटर ने देखा अपने सामने बैठा हुआ, ठीक है। It was the morning after the day my mother had told me about her. Again the story is in flashback. फिर से स्टोरी किसमें है, फ्लैशबैक में, यानी प्रीवियस लाइफ की बात कर रही है कि मॉर्निंग की बात है। आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जब मेरी माँ ने मुझे बता दिया था उनके बारे में। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, मैं जो उस दिन क्या हुआ था, देरी से उठी थी और नीचे आ रही थी ऊपर से। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने किसी को देखा, मेरी माँ क्या कर रही थी, किसी को सी ऑफ कर रही थी। क्या कर रही थी, सी ऑफ कर रही थी। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैग, यानी एक ब्रॉड बैग वाली वुमन को कर रही थी। अपेरेंटली सी वाज मिसेस डॉर्लिंग, कौन थी वो, मिसेस डॉर्लिंग ही थी। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, यानी तभी देखिए कह रही है कि देखो मेरा इंट्रोडक्शन करवाया मेरी माँ ने उनसे। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर शी बैकोन्ड टू मी, शी बैकोन्ड टू मी। बैकोन्ड टू का मतलब होता है जब उंगली करके किसी तरफ कहते हैं ना, जैसे कि ये ना देखो ये रमेश है, ये सोनू है, इसको बैकोन्ड कहते हैं। BACKOND, बैकोन्ड यानी इंडिकेटेड, ठीक है, या जेस्चर यानी इशारा दे करके कहा। BA नहीं है, BE है,
BEC के हो, ठीक है। द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस, महिला ने क्या किया, गर्दन हिलाई अपनी, एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, उसने अपने लंबे कोट के नीचे छुपा लिया सूटकेस को। इस हिसाब से पता चल रहा है कि वो चोरी छुपे सामान को लेकर के जा रही है, क्योंकि उसे भी डर लग रहा होगा कि कहीं पता चल गया कि मैं अगर जी उसको इस तरीके से हेल्प कर रही हूँ तो हो सकता है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि इसका एंड में स्टार्टिंग में मिला था जब नरेटर ने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने अड़का दिया था कि तुमने उसके रिस्क के बारे में नहीं सोचा। तो इट मीन्स देयर माइट बी सम रिस्क। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट, उस महिला की अटायर है, ठीक है, कोट पहनी हुई थी, शेपलेस हैट पहनी हुई थी। डज शी लिव फार अवे, क्या दूर रहती हैं। आई आस्क्ड सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, जैसे हैवी केस को लेकर के वो जा रही थी, निकल रही थी घर से, तो मैंने पूछा अपनी माँ से, या नरेटर ने अपनी माँ से पूछा कि क्या ये बहुत दूर रहती हैं क्या। अब देखिए, अब काम की बात आती है आपकी। इन मार्कोनी स्ट्रीट, कहाँ रहती हैं, इन मार्कोनी स्ट्रीट साइड माई मदर नंबर 46। देखिए ये था एड्रेस। मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, ठीक है। MARCONI, शायद पहले मैंने वो लिख दिया था, KNI नहीं है, ठीक है, MARCONI, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। तो इस एड्रेस को आप भी याद रखना, रिमेम्बर दैट, यानी दिस एड्रेस वाज गिवन टू द नरेटर बाय हर मदर, उसे याद रखना, बस ये काम। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. लेकिन बहुत सारा वेट किया था वहां जाने के लिए। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored of stuff, and naturally I was also rather afraid of it. And in the beginning, the narrator was not interesting to get her luggage, to get her belongings back. ठीक है, यानी जब लिबरेशन हो गई थी, यानी जब सब लोग स्वतंत्र हो गए थे, वॉर ओवर हो गया था, तो पहली बात तो इंटरेस्टेड नहीं थी, एंड नेचुरली आई वाज आल्सो अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक रूप से नरेटर जो है उन ऑब्जेक्ट्स को देखने से क्या थी, डरी हुई थी, ठीक है। यानी कि अब स्टोरी कहाँ आ गई, पोस्ट वॉर में आ गई। कहाँ पर आ गई, पोस्ट वॉर में आ गई है, ठीक है। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, यानी जब चीजें नॉर्मल हो गई थी तो उन ऑब्जेक्ट्स को देखने से क्या हो रही थी, डरी हुई थी थोड़ी सी। एंड शी वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद द थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, यानी वो जो चीजें रखी हुई थी उनका कनेक्शन एक ऐसे व्यक्ति से था जो अब दुनिया में नहीं है। इट मीन्स हर मदर इज नो मोर इन द वर्ल्ड, अब उसकी माँ दुनिया में नहीं है, क्योंकि उन जो चीजें रखी हुई थी उन चीजों का कनेक्शन किससे था, उसकी मदर से था, और वो मदर अब दुनिया में नहीं थी, इसीलिए वो जो उन ऑब्जेक्ट से डरी हुई थी। Which were hidden away in cupboards and boxes and waiting, यानी वो चीजें जो छुपी हुई रखी थी कवर्ड्स में, बॉक्सेस में, and waiting in vain until they were put back in their places again, which had endured all those years because they were things, यानी ये चीजें इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव इसीलिए करती रही, इतने लंबे टाइम तक इसीलिए रखी रही क्योंकि वो चीजें थी, ठीक है। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, यानी स्लोली एंड ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, अंडरलाइन द सेंटेंस, bread was getting to be a lighter color. What do you think is the meaning of the sentence? Sentence का meaning ये है that the cost of the daily needs was getting low, ठीक है, यानी कैसी हो रही थी, कम होती चली जा रही थी। चीजों के जो प्राइस थे युद्ध के टाइम पर क्या हो गए थे, बढ़ गए थे, ठीक है, और अभी जो सामान की जो कीमतें हैं कैसी होती चली गई, हल्की होती चली गई, खास करके खाने पीने की चीजों की कीमतें। There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day, यानी अब नरेटर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रूम है और उस रूम में वो आराम से सो सकती है अनथ्रेटिंगली, यानी अब पहले जैसा कोई थ्रेट नहीं है, कोई भी डर नहीं है, ठीक है।
And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. और एक दिन क्या हुआ था कि नरेटर के अंदर क्यूरियसनेस आई कि है ना मुझे उन ऑब्जेक्ट्स को ले लेना चाहिए और वो ऑब्जेक्ट अभी भी उसी एड्रेस पर होंगे. I wanted to see them, touch, remember. मैं उनको देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी और रिमेम्बर करना चाहती थी. After my first visit in Wayne to Mrs. Dorling's house, यानी मेरे फर्स्ट विजिट जो मेरा वेन में चला गया था, वेन का मतलब होता है यूजलेस, ठीक है, फ्यूटाइल चला गया था. डॉर्लिंग्स हाउस क्यों चला गया था वेन? VAIN, क्योंकि मिसेज डॉर्लिंग ने उसे पहचाना ही नहीं, उससे बात तक नहीं की. ठीक है. आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, तब उसने दूसरी बार जाने का डिसीजन लिया. नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन्ड द डोर. अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 यानी मिसेज डॉर्लिंग्स डॉटर, उसकी डॉटर है ये. ओपन द डोर टू मी. आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम. यानी नरेटर ने अब सेकंड विजिट किया है. कौन सा विजिट है? सेकंड विजिट है. और सेकंड विजिट में डॉर्लिंग तो घर पर नहीं है. कौन है उसकी डॉटर घर पर है. ठीक है. जब डॉटर घर पर थी तो डॉटर से उसने पूछा कि आपकी माँ है क्या घर पर? नो शी सेड माय मदर इज डूइंग एन एरांड. नो शी सेड माय मदर इज डूइंग एन एरांड. एरांड का मतलब क्या होता है? एरांड मीन्स होता है जॉब, यानी स्मॉल वर्क. ठीक है, छोटा मोटा काम, जैसे कि मार्केट जाओ, मार्केट से कोई सामान लेके आना, इसे क्या कहेंगे हम? एरांड कहेंगे. ठीक है. नो मैटर आई सेड आई वेट फॉर हर. कोई बात नहीं, मैं उनके लिए वेट कर लूंगी. I followed the girl along the passage. This time, Mrs. Dorling's daughter welcomed the narrator. यानी इस टाइम जो है Mrs. Dorling की जो डॉटर है उसने नरेटर का क्या किया? वेलकम किया. एंड शी अलाउड हर, उसने अलाउ कर दिया टू लेट हर कम इन हर हाउस. एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का. पहली चीज जो नरेटर की फैमिली की थी, नरेटर की माँ की थी, जिसको उसने डॉर्लिंग के घर पर देखा, दैट वाज हनुक्का. क्या था? हनुक्का. देखिए ये था. ठीक है. ये क्या है? ये एक्चुअली में नीचे लिखा हुआ है द फीस्ट ऑफ लाइट्स आर हिब्रू फेस्टिवल इन दिसंबर. यानी ये एक तरह का कैंडल होल्डर है. ठीक है. हनुक्का कैंडल होल्डर है जिसे कब जलाया जाता है? एक फेस्टिवल के टाइम पर जलाया जाता है. पूरा लिख देता हूं, हनुक्का कैंडल होल्डर. ये वो कैंडल होल्डर है जिसे एक फेस्टिवल के टाइम पर यूज किया जाता है. नेक्स्ट टू मिरर, जो मिरर के बगल में रखा हुआ था. वी नेवर यूज बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम. हमने इसे कभी भी यूज नहीं किया था क्योंकि हनुक्का कैसा था? कम्बरसम था. कम्बरसम का मतलब क्या होता है? हैवी. क्या मतलब होता है? हैवी. ठीक है. भारी था ये. देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, यानी सिंगल कैंडल स्टिक के कंपेरिजन बहुत भारी होता है. वॉन्ट यू सिट डाउन? आस्क द गर्ल. क्या आप बैठोगी? नहीं, लड़की ने पूछा. शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर. यानी उसने क्या कर लिया? दरवाजे को पकड़ लिया, खोल दिया और मैं उसके बगल से होकर के अंदर की ओर चली गई. आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड. आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो. I stopped horrified means when she came in the contact of the object belonging to her mother, she felt horrified. I was in a room I knew and did not know. I was in a room, यानी वो एक ऐसे रूम में थी जिसके अंदर सारी चीजें जो थी वो उसके लिए नॉन थी. एंड आई डिड नॉट नो. ठीक है. लेकिन उस प्लेस के बारे में उसे पता नहीं था. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन. मैंने अपने आप को ऐसी चीजों के बीच में पाया जिनको मैं क्या करना चाहती थी? देखना चाहती थी फिर से. ठीक है. But which oppressed me in the strange atmosphere. लेकिन the things, the way they all were placed oppressed me. Means all the things were placed in an unarranged way. ठीक है. यानी unarranged way में रखी हुई थी, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ऑप्रेस कर रही थी वो चीजें, क्योंकि वो अच्छी अच्छी चीजें थी. आपकी कोई भी कॉस्टली चीजें, कोई भी प्रेशियस चीजें जब किसी और के घर पर किसी अनअरेंज्ड वे में यानी बिखरी हुई पड़ी हुई हो तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा. द सेम नरेटर फेल्ट.
और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, टेस्टलेस वे वही है यानी अनअरेंज्ड वे, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और मगी स्मेल दैट हंग देयर, या फिर ये हो सकता है कि मुझे प्रॉब्लम इसीलिए हो रही थी क्योंकि उनके घर में से कैसी स्मेल आ रही थी, मगी स्मेल आ रही थी, अगली सी, गंदा सा लग रहा था उसको। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, बट लेकिन मैंने ना मुश्किल से ही, डरे हुए यानी रेयरली मैंने जो है हिम्मत की थी अपने चारों तरफ देखने की। द गर्ल मूव्ड टू अ चेयर, लड़की जो है कहाँ गई, चेयर की तरफ गई। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ, और जो वुडन टेबल क्लॉथ पर बैठ गई। आई रब्ड इट, मैंने इसे रब कर दिया था, मैंने रब किया उसे, क्या किया, ऐसे करके, जैसे कपड़े को रब करते हैं उंगली से रब किया। माई फिंगर्स ग्रू वॉर्म फ्रॉम रबिंग, जैसे मैं उस कपड़े को, टेबल के ऊपर जो बिछा हुआ कपड़ा है ना, जैसे ही मैंने उसको रब किया तो मेरी फिंगर्स कैसे हो गई थी, वार्म हो गई थी, ठीक है। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, कपड़े पर जो पैटर्न बना हुआ था मैं उसको फॉलो कर रही थी। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। लेट मी सम अप करता हूं तो इस पैराग्राफ का यही मतलब निकलेगा कि नरेटर को जो है उसकी डॉटर ने यानी मिसेज एस की डॉटर ने अलाउ कर दिया, दरवाजा खोल दिया, वो अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी पहचानी हुई चीजें, उसके घर की खुद की चीजें इधर उधर पड़ी हुई थी, तो सी फेल्ट हॉरिफाइड, ठीक है, वो थोड़ा सा हॉरिफाइड फील कर रही थी। एंड सी फेल्ट ऑप्रेस्ड बिकॉज द थिंग्स वर अरेंज्ड इन एन टेस्टलेस मैनर, क्योंकि चीजें एक टेस्टलेस मैनर में पड़ी हुई थी, ठीक है। और क्या नाम है, सबसे पहले जो देखा था उसने क्या देखा था, अपने खुद के घर का सामान, अनूप का कैंडल होल्डर था, ठीक है। जो सेकंड ऑब्जेक्ट जिनका चारों तरफ अपने आप को पाया, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए थे, यानी जो दूसरी चीज थी जिसको नरेटर ने कंफर्म कर लिया था कि ये हमारा है, वो क्या था, टेबल क्लॉथ था, क्या था, टेबल क्लॉथ था, ठीक है। अब टेबल क्लॉथ जो था, तो टेबल क्लॉथ को उसने कैसे पहचाना, टेबल क्लॉथ को उसने ऐसे पहचाना क्योंकि क्या नाम है, वो टेबल क्लॉथ कैसा था, जला हुआ था, ठीक है, और जला हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको क्या नहीं कराया था, कभी भी उसको रिपेयर यानी उसको ठीक नहीं कराया था, ठीक है। तो उन्होंने पहचान लिया था उसको कि ये कन्फर्मली हमारा ही है। इट्स एनफ फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।